Happy Easter to all. Today, friends, I will tell you what is Easter, why we celebrate it, and how is it very important for us, and what a good moral it has. So, our story begins. The story of sacrifice, hope, and new life. Long ago, in a land far away, lived a man named Jesus. He was no ordinary person. Many believed he was the Son of God, sent to the earth with a powerful message of love, peace, and forgiveness. He traveled from village to village, healing the sick and comforting the poor. आज की हमारी कहानी ईस्टर पे है। जैसे कि आज ईस्टर है, दैट्स व्हाई मैंने आप सबको हैप्पी ईस्टर विश किया। तो इसी पे कहानी हमारी आज की शुरू हुई है और इसका टाइटल है बलिदान, आशा और नए जीवन की कहानी। बहुत समय पहले एक दूर देश में यीशु नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बहुत से लोग मानते थे कि वे ईश्वर के पुत्र थे, जिन्हें प्यार, शांति और क्षमा का संदेश देकर पृथ्वी पर भेजा गया था। उन्होंने गांव-गांव घूमकर बीमारों को ठीक किया और गरीबों को सहारा दिया। Jesus taught people to love even their enemies, but his growing popularity made the powerful leaders jealous and afraid. They didn't like how he challenged their unfair rules. Eventually, they arrested him and ordered him to be crucified on a wooden cross, thinking they could stop his message forever. यीशु ने लोगों को अपने दुश्मनों को भी प्यार करना सिखाया, लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने शक्तिशाली नेताओं को डरा रखा था। उन्हें ये पसंद नहीं आया कि यीशु ने उनके गलत नियमों को चुनौती दी। अंत में उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया और लकड़ी के क्रॉस पर चढ़ाने की सजा दी, यह सोचकर कि वे उनके संदेश को हमेशा के लिए मिटा देंगे। It was a quiet Friday when little David and Sarah were sitting with their granny. They looked at the cross on the wall and felt a bit sad. David turned to Granny and asked, "Granny, if today is so sad day because Jesus suffered, why do we call it Good Friday?" एक शांत शुक्रवार का दिन था जब छोटे डेविड और सारा अपनी दादी के साथ बैठे थे। उन्होंने दीवार पर लगी क्रॉस को देखा और थोड़ा दुखी महसूस किया। डेविड ने दादी की ओर मुड़कर पूछा, दादी, अगर आज का दिन इतना दुखद है क्योंकि यीशु ने कष्ट सहा, तो हम इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? Granny smiled and held Sarah's hand. She explained, "It is good because it shows Jesus' ultimate suffering. He took all our mistakes and pain upon himself out of pure love. Even in that darkness, he was opening a path for us to be forgiven and start fresh." दादी मुस्कुराई और उन्होंने सारा का हाथ थाम लिया। उन्होंने समझाया, ये गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि ये यीशु के महान बलिदान को दर्शाता है।
उन्होंने हमारे सारे दुखों और गलतियों को अपने ऊपर ले लिया। उस अंधेरे में भी वे हमारे लिए क्षमा और एक नई शुरुआत का रास्ता खोल गए थे। 2 days later, on Sunday morning, the house was filled with lights. Sarah and David woke up to find Granny decorating the table with lilies and colorful eggs. The sadness of Friday was gone, replaced by a feeling of pure joy and celebration. 2 दिन बाद रविवार की सुबह घर रोशनी से भर गया। सारा और डेविड जब जागे तो उन्होंने देखा कि दादी मेज को फूलों और रंगीन अंडों से सजा रही थी। शुक्रवार का दुख अब जा चुका था और उसकी जगह खुशी और उत्सव के माहौल ने ले ली थी। Happy Easter, Granny cheered. She told them that on this day Jesus rose from the dead, providing that love is stronger than death and light always defeats darkness. This is the importance of Easter. It is the victory of hope over despair. Happy Easter, दादी ने खुशी से कहा। उन्होंने उन्हें बताया कि इसी दिन यीशु मृत्यु पर विजय पाकर फिर से जीवित हो उठे थे, ये साबित करते हुए कि प्रेम मृत्यु से भी बलवान है और प्रकाश हमेशा अंधकार को हरा देता है। यही ईस्टर का महत्व है। यह निराशा पर आशा की जीत है। Granny handed David and Sarah the Easter eggs. She said, just as a chick comes out of an egg to a new life, Easter reminds us that after every hard time, there is a new beginning. Always keep faith and be kind to everyone, just like Jesus taught us. दादी ने डेविड और सारा को ईस्टर के अंडे दिए। उन्होंने कहा, जैसे अंडे से एक चूजा निकलकर नए जीवन में आता है, ईस्टर हमें याद दिलाता है कि हर कठिन समय के बाद एक नई शुरुआत होती है। हमेशा विश्वास बनाए रखो और सभी के प्रति दयालु रहो, जैसा यीशु ने हमें सिखाया था। So the moral of the story is, no matter how dark the light, the sun will always rise. Sacrifice leads to salvation and love always wins. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, रात चाहे कितनी भी घनी क्यों ना हो, सूरज हमेशा उगता है। बलिदान से ही मुक्ति मिलती है और प्रेम की हमेशा जीत होती है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कहानी थी जो हमें गुड फ्राइडे का इम्पोर्टेंस बताती है, ईस्टर की इम्पोर्टेंस बताती है। और मैं आपसे एक चीज शेयर जरूर करना चाहूंगी कि मेरे लिए यहाँ ये ईस्टर की जो मोरल स्टोरीज हैं हमने भी बचपन से सुनी है, बट ईस्टर इसलिए जब मैं छोटी थी इसलिए मेरे लिए और स्पेशल रहता था क्योंकि जहाँ हम रहते थे, मैं जिस सिटी में पहले रहती थी, वहाँ पे ईस्टर सेलिब्रेट होता था और जो ईस्टर एग्स होते थे वो और भी स्पेशल होते थे। वहाँ पे हमको चॉकलेट के ईस्टर एग्स मिलते थे फिल्ड विद स्वीट्स। सो वी एक्सचेंज, हम लोग वो एक्सचेंज करते थे। जो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स होते थे, हमारी टीचर्स एक्सचेंज करवाती थी ईस्टर एग्स, हम लोग लेके जाते थे। तो ईस्टर हमारे लिए मोरली भी बहुत स्पेशल रहता था और ईस्टर एग की अलग ही एक एक्साइटमेंट रहती थी। सो वंस अगेन आई लाइक टू से हैप्पी ईस्टर टू ऑल। बी काइंड, जनरस एंड हेल्प अदर्स। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं और आप इस तरीके की कहानियां और सुनना चाहते हैं, सो प्लीज
Like, share, and subscribe the channel and do comments. Thank you.